Hello students. Today we will study chapter 5. Our chapter 5 name is Algebraic Expressions. We will learn in this chapter. इस chapter में हम पढ़ेंगे first is quick recall of some definitions. Second is types of algebraic expressions. Third is the degree of a polynomial. Fourth is evaluation of an algebraic expression. And fifth is operations on algebraic expressions. In our previous class, we were introduced to a new branch of mathematics named algebra that deals constants and literals. It means variables. अपने previous class में हमने पढ़े हैं जो new branch mathematics की उसमें हमने introduce हुए हैं जिसका name आया था algebra. इसका मतलब है ये constant और literals. Literals means variable से deal करते हैं. We learn some terms frequently used in algebra. हम कुछ terms को पढ़ेंगे, learn करेंगे frequently जिसमें हम algebra में use करते हैं. We came across the addition and subtraction of algebraic expressions. अब हम algebraic expressions के addition और subtraction पर बात करते हैं. We also learned about transposition, which helped us to find the value of an expressions. हम इसमें transpositions के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारी help होती है कि हम आराम से expressions की value को find कर लेते हैं. Here we will revise all those concepts and extend our idea of algebraic expressions. यहाँ पर हम सभी अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और अपने algebraic expressions के आइडिया को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. Quick recall of some definitions. Constant, a symbol which has a fixed numerical value is called a constant. वो नंबर जिसके fixed numerical value होती है उसको हम constant बोलते हैं. For example, 3, -8, -7 upon -3, 2 whole, 3/9, etc. are some constants. ये कुछ आपको constants के नेम दे रखे हैं. Variable, a symbol which can take different numerical values in different situations is called a variable or literal. वो symbol जो अलग अलग numerical values देता है, contain करता है अलग अलग situation में, उसको हम variable या फिर literals बोलते हैं. For example, x, y, a, n, etc. are some variables. Generally, we use letters of English alphabet to represent variables. ज़्यादातर हम English alphabet का ही use करते हैं variables को represent करने के लिए. Algebraic expression, a combination of constant and variables connected by one or more signs of four fundamental operations plus, minus, multiply and divide is called an algebraic expressions. वो combination जिसमें constant और variables साथ में connected होते हैं एक या एक से ज़्यादा sign के द्वारा, जो four fundamental operations होते हैं plus, minus, multiply, divide इनसे connected हुए होते हैं उनको हम algebraic expressions बोलते हैं. For example, 8x plus 9x, 2xy minus 8yz minus xyz plus 7 etc. are some algebraic expressions. Terms, various parts of an algebraic expressions which are separated by signs plus or minus are called terms. वे अलग अलग पार्ट algebraic expressions के जो separated होते हैं प्लस या माइनस के साइन के द्वारा उनको हम terms बोलते हैं. For example, consider an expression 2x minus 8yz minus xyz plus 7. ये expressions consider करते हैं. Here यहाँ पर 2x minus 8yz minus xyz and 7 are its terms. ये terms हैं. Factor, when two or more constants or variables are multiplied in a term, then each one of these is called the factor of the product. जब दो या दो से ज़्यादा constants या फिर variables को multiply करते हैं term में, तो एक उसमें जो बनता है हर एक का उसको हम factor बोलते हैं उसके product का. For example, consider the term 8yz and minus xy square. एक term consider करते हैं 8yz और minus xy square. Here the factors of 8yz are 8, y and z. यहाँ पर 8yz के factors क्या है बच्चों? 8, y and z. And the factor of minus xy square और minus xy square के factors क्या है? Are -1, x and y square. Do you know? First is the constant factors like 8, -1, etc. are called numerical factors, whereas variable factors like x, y, z, y square etc. are called literal factors. जो constant factors होते हैं जैसे कि 8, -1, etc. ये सभी numerical factors होते हैं, जबकि variable factors जैसे कि x, y, z, y square etc. ये सभी हमारे literal factors होते हैं और इनको हम variable factors भी बोल सकते हैं. Coefficient, when two or more constant or variables are multiplied in a term, then each one of them is called coefficient of the product of the others. जब दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट या वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते हैं टर्म में, तो एक हर एक जो होते हैं उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं कि वो कोफिशिएंट है दूसरे के प्रोडक्ट का. फॉर एग्जांपल, कंसीडर द टर्म 8xy. एक टर्म कंसीडर करते हैं 8xy
हियर 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर जो 8 है वो कोफिशिएंट है एक्स वाई का, x is the coefficient of 8y, x coefficient है 8y का, and y is the coefficient of 8x, और y 8x का coefficient है. Do you know? First is a constant coefficient like 8, etc. is called a numerical coefficient, whereas variable coefficient like x, y, etc. is called a literal coefficient. जो constant coefficient होता है जैसे कि 8, etc. इसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, जबकि जो वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं लाइक एक्स वाई जेड ये सब चीज होती है एक्सेट्रा, इनको हम लिटरल कोफिशिएंट बोलते हैं, फिर वेरिएबल कोफिशिएंट भी बोलते हैं. टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. वे टर्म्स जिनके सेम लिटरल फैक्टर्स होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8xy माइनस 4xy माइनस 2x प्लस 3xy इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. हियर 8xy minus 4xy and 3xy are like terms since they have same literal factors and xy. 8xy minus 4xy और 3xy ये like terms है क्योंकि इनके पास same literal factors है x और y. Unlike terms having different literal factors are called unlike terms. वे terms जिनके पास अलग अलग literal factors होते हैं उनको हम unlike terms बोलते हैं. For example 8x square y minus 2xy square minus 3yx square is an algebraic expression with 8x square y and minus 2xy square are unlike terms. ये दोनों क्या बच्चों? unlike terms है. Whereas 8x square y and minus 3yx square are like terms. 8x square y और minus 3yx square दोनों क्या है? like terms हैं. Constant terms. A term of an algebraic expression having no literal factors is called a constant term. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वो टर्म जिसके पास कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 प्लस 4y इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद माइनस 9 एज कॉन्स्टेंट टर्म. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें से जो माइनस 9 है ये क्या है बच्चों? हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है. एग्जाम्पल 1 राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. आपको कुछ स्टेटमेंट लिखनी है algebraic expressions ग्रुप में. फर्स्ट इज द सम ऑफ x एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. जो सम है x और 5 का वो सब्ट्रैक्टेड हो रहा है किसमें से? y में से. देखिए सॉल्यूशन देखते हैं किसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है? y में से. तो y माइनस क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? x और 5 का सम, इट मींस x प्लस 5. सेकंड इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. आधा प्रोडक्ट है किसका? a और b का, तो हाफ ab. थर्ड क्या है बच्चों? नंबर्स x एंड y आर बोथ स्क्वायर्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. जो नंबर्स हैं x और y ये दोनों ही स्क्वायर्ड हुए हैं और इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है. इट मींस 3 से मल्टीप्लाई हो रही है x स्क्वायर और y स्क्वायर. फोर्थ इज 3 टाइम्स a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ b स्क्वायर्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड c. 3 टाइम्स मतलब 3 बार जो a है इट मींस 3a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है किसमें से? सम में से. किसके सम में से? b के स्क्वायर से और 4 और c के प्रोडक्ट से. तो b का स्क्वायर प्लस 4 और c का प्रोडक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ये 3a से. 3 टाइम्स a से. दोबारा देखिए बच्चों b स्क्वायर दोनों का सम इट मींस प्लस प्रोडक्ट किसका है? 4 और c का, तो 4c दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है 4 इंटू c की. उसके बाद ये सब किसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 3 टाइम्स a में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 3a. Types of algebraic expressions. Algebraic expressions are divided on the basis of numbers of terms. जो algebraic expressions है वो divided होती है number of terms के basis पर. Monomial expressions having only one term. वो expression जिसमें सिर्फ one term होती है उसको monomial बोलते हैं. For example 5x minus 8x square y 7/2 etc. Next is binomial expressions having only two terms. वो expressions जिसमें सिर्फ दो terms होती हैं. For example 3x plus 2 3mn plus 7m 6x square minus y etc. Next trinomial expressions having only 3 terms. वे expression जिसमें सिर्फ 3 terms होती हैं उनको हम trinomial बोलते हैं. For example 3xy plus 2x plus 5/4 2a square minus b square plus c square 7xyz plus 9 minus 3/2x etc. ये सभी कैसे टर्म्स है बच्चों? हमारे ट्राइनोमियल. क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशंस हैविंग 4 टर्म्स. वो एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उनको हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 2x plus 9y minus 6xy plus 9/2
9a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस 3/2ab प्लस 15a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्सेट्रा। ये सभी क्या है बच्चों, हमारे 4 टर्म्स है, एक्सप्रेशन है, इसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशंस हैविंग वन और मोर टर्म्स। वे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल -7 5x³ माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 प्लस 4y एक्सेट्रा। एग्जाम्पल 2, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको इन फॉलोइंग जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं आपको सबके टर्म्स लिखने हैं। फर्स्ट 3xy प्लस 4x स्क्वायर। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। 3xy प्लस 4x स्क्वायर में कितने टर्म्स है बच्चों, इट हैज 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स है, दैट इज कौन कौन सी, 3xy एंड 4x स्क्वायर, 3xy एंड 4x स्क्वायर। सेकंड इज 8xy प्लस 4x माइनस 7, 8xy प्लस 4x माइनस 7। तो देखिए इसमें कितने टर्म्स है बच्चों, इट हैज 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स है, दैट इज कौन कौन सी, 8xy 4x एंड माइनस 7। थर्ड इज 9a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 4m। देखिए थर्ड पार्ट में 9a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 12b एंड प्लस 4m। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इट हैज 4 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, कौन कौन से, 9a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस का 12ab प्लस का 4m। डू यू नो फर्स्ट दिस टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। टर्म्स को हम प्लस और माइनस साइन के द्वारा सेपरेटेड करते हैं, अलग अलग करते हैं। एग्जाम्पल 3, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में जो आपको पार्ट थर्ड दे रखा था उसमें सभी टर्म्स के आपको सभी फैक्टर्स लिखने हैं। सोल्यूशन देखते हैं। टर्म्स क्या थे बच्चों, 9a स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस 12ab एंड 4m। आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स क्या होंगे, 9a 3b स्क्वायर फैक्टर 3bb माइनस 12ab के फैक्टर माइनस 12a और b और 4m के फैक्टर 4 और m। एग्जाम्पल 4, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको इन सभी एक्सप्रेशन में से x का कोफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट इज 6xy, सेकंड इज 3x स्क्वायर y माइनस y, थर्ड इज 3y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x प्लस 7। सॉल्यूशन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x इन, कोफिशिएंट क्या होगा x का, कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में 6xy में x का कोफिशिएंट होगा बच्चों 6y। सेकंड पार्ट में x का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, x का कोफिशिएंट होगा इसमें 3xy और थर्ड पार्ट में x का कोफिशिएंट होगा बच्चों -1। एग्जाम्पल 5, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको इन सभी में से लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। फर्स्ट इज 7x प्लस 4y माइनस z माइनस 4x प्लस 3xy। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। लाइक टर्म्स क्या है बच्चों, 7x एंड माइनस का 4x। सेकेंड इज a माइनस 2b प्लस 3c प्लस 4 माइनस 2/5c प्लस 7b। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसमें लाइक टर्म्स क्या है बच्चों, इसमें लाइक टर्म्स है -2b 7b, ये 2 है, एंड 3c माइनस 2/5c। थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर y प्लस 3xz स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x माइनस 15y स्क्वायर x। थर्ड पार्ट देखिए लाइक टर्म्स आर, इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, 3xz स्क्वायर z स्क्वायर x एंड 5xy स्क्वायर और माइनस 15y स्क्वायर x। एग्जाम्पल 6, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। आपको क्लासिफाई करना है इन सभी में से कि क्या है, पॉलिनोमियल्स में से क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, फिर क्वाड्रिनोमियल है। फर्स्ट है 10x³ माइनस 9x स्क्वायर। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। 10x³ माइनस 9x स्क्वायर, इट हैज 2 टर्म्स, कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स एंड बाइनोमियल, तो क्या है बच्चों, बाइनोमियल है। सेकंड इज माइनस 3x स्क्वायर yz, माइनस 3x स्क्वायर yz। देखिए सेकंड पार्ट में माइनस 3x स्क्वायर yz में से इसमें सिर्फ कितने टर्म है, 1 टर्म, इट हैज 1 टर्म, हेंस मोनोमियल। से क्या है बच्चों, मोनोमियल है। थर्ड 3 प्लस 8a प्लस b प्लस 2c। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। 3 प्लस 8a प्लस b प्लस 2c, इट हैज 4 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स, हेंस क्वाड्रिनोमियल। तो ये क्या है बच्चों, क्वाड्रिनोमियल है।
फोर्थ इज 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर, इट हैज 3 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स, 1 2 3, हेंस ट्राइनोमियल। तो ये क्या है बच्चों? ट्राइनोमियल है। Degree of a polynomial. The term with the highest power of the variable in an algebraic expression decides the degree of the polynomial. किसी भी टर्म की जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो डिसाइड करेगा algebraic expressions में से कि उस polynomial की डिग्री कितनी होगी। The highest power is called the degree of the polynomial. जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री ऑफ द polynomial होगी। First is if a polynomial contains one variable, then the highest power of the variable in the polynomial is the degree of the polynomial. यदि किसी polynomial में एक वेरिएबल है तो उसको जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की पॉलिनोमियल के अंदर, वही डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x पावर 4 माइनस 8/9, हैंस द पॉलिनोमियल हैज ओनली वन वेरिएबल। इस पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल। इट मींस x ही वेरिएबल है, दैट इज x। क्या है बच्चों? x है। सो इट इज द वन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का? 4 डिग्री का, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों? 4 है। सेकंड इज if the polynomial contains more than one variable, then the highest power among the sum of p, the different variable in each term is the degree of the polynomial. यदि polynomial में काफी सारे एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल कंटेंट होते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होती है उन सभी के सम से, मतलब सम ऑफ p जो होता है अलग अलग वेरिएबल्स का हर एक टर्म में, वो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस y प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 9x क्यूब y। हियर the polynomial has two variables. यहाँ पे polynomial के दो variables हैं x and y. Now the degree of different terms are, जो डिग्री है अलग अलग टर्म्स की वो क्या क्या है बच्चों? 4x स्क्वायर इट मीन्स डिग्री 2, y इट मीन्स डिग्री 1, 4xy स्क्वायर इट मीन्स डिग्री 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3x स्क्वायर y इट मीन्स डिग्री 2 प्लस 1 इट मीन्स 3, 9x क्यूब y इट मीन्स 3 प्लस 1 4। द हाईएस्ट डिग्री अमंग देम इज 4। तो मतलब हाईएस्ट डिग्री कौन सी है बच्चों? 4। Hence 4 is the degree of the polynomial. इसका मतलब 4 क्या है? डिग्री है polynomial की। According to their degree, polynomials are named as, डिग्री के अकॉर्डिंग polynomial के नेम दे रखे हैं। linear polynomial, it is a polynomial of degree 1 like 3x minus 7x minus y etc. ये polynomial इसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम linear polynomial बोलते हैं। quadratic polynomial, quadratic polynomial, it is a polynomial of degree 2 like 5x square 6x square plus y, 9x square plus 4y square minus 3x plus 2 3x square plus 7। इन सभी polynomial में क्या बच्चों? डिग्री 2 है, इट मींस ये है हमारा quadratic polynomial। नेक्स्ट cubic polynomial, it is the polynomial of degree 3 like 9x cube 7xy square plus 9yx square 9x cube plus 4x square minus 5x plus 2x minus 1। ये सभी क्या है बच्चों? ये इन सभी की डिग्री 3 है, इट मींस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 लाइक 5 17 x की पावर 0 एक्सेट्रा। ये वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल 7, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इन सभी पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। फर्स्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। हमें क्वेश्चन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें हमें डिग्री लिखनी है। हियर 4x पावर 4 इज द वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर इट इज 4। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर है। क्या है हाईएस्ट पावर बच्चों? 4। हैंस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4। सेकंड पार्ट 5a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 5। सोल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का। यहाँ पर 5a क्यूब में जो वेरिएबल है इसमें हाईएस्ट पावर है कौन सी है? 3। हैंस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? 3। थर्ड पार्ट 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5xy क्यूब माइनस 5xy4 माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। थर्ड पार्ट में आपको ये वो दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है। यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर ये टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर सम है डिग्री का। क्या है डिग्री का सम? हेंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 प्लस 3 प्लस 2 इट मीन्स 7। Next, evaluation of an algebraic expression. We know algebraic expression contains one or more variables. जैसे कि हम जानते हैं algebraic expressions contain करते हैं एक या एक से ज़्यादा variables को। Variables can take different numerical values depending upon the situation. जो variables होते हैं वो अलग अलग numerical values को contain करते हैं, depend करते हैं situations पर। In order to evaluate an algebraic expressions, we replace the variables by their
numeric values and then simplify it following the order of operation as in BODMAS. इस ऑर्डर में जब हमें इवेल्युएट करना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो हम वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज से और तब उनको सिंप्लीफाई करते हैं ऑपरेशन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए, एज अ BODMAS को फॉलो करते हुए हम उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. एग्जांपल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू -5. आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्सप्रेशंस के जहां पर आपको a 8 दे रखा है और b -5. फर्स्ट पार्ट 5a + 6b - 4. क्वेश्चन देखते हैं. रिप्लेसिंग a by 8 and b by -5 वी गेट. हमें a को रिप्लेस करना है 8 से और b को रिप्लेस करना है -5 से. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने रिप्लेस किया 5 a की जगह 8 + 6 b की जगह -5 -4 ऐसे रखेंगे. 5 8 = 40 प्लस माइनस 6 5 = 30 -4. इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6. सेकंड पार्ट देखिए 3a² + b² - ab + 15. सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आपको एक्सप्रेशन दे रखा है. देखिए a की जगह हम 8 लिखेंगे. 3 8 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर -8 ब्रैकेट में -5 प्लस 15. सॉल्व करते हैं. 3 8 का स्क्वायर 64 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस 8 5 = 40 प्लस 15. 364 = 192 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 15. सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 272. एग्जाम्पल 9, इवेल्युएट x³ + 3x² y + 6y² x - 3z³ + x² yz when x = 1, y = -2 and z = -1. आपको इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है. आपको वैल्यू दे रखी है x की 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1. सॉल्यूशन देखते हैं. सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 -2 और -1 इसमें x y और z में रिस्पेक्टिवली. वी गेट, इसमें हम अगर पुट करेंगे वैल्यू तो 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर -2 प्लस 6 -2 का स्क्वायर 1 -3 -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 और -1. ठीक है बच्चों, उसको सॉल्व करते हैं. 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. 3 1 = 3 और -2 इसको ऐसे लिखेंगे. प्लस 6 -2 का स्क्वायर 4 -3 इसमें देखिए -1 का क्यूब -1 ही होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 2. देखिए 1 प्लस माइनस 3 2 = 6 प्लस 6 4 = 24 माइनस प्लस 3 1 = 3 और प्लस 2. इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 you have to do yourself. Operations on algebraic expression. Number first is addition of algebraic expressions. Consider an example. Example consider करते हैं. Pawan has a fruit basket which contains 10 apples. पवन के पास fruit basket है जिसमें 10 apples हैं, 12 mangoes हैं and 7 bananas and 6 oranges हैं. He added 3 apples, 2 oranges and 3 bananas to it. वो उसके अंदर 3 apples, 2 oranges और 3 bananas को ऐड कर देता है. Then he counted the number of each fruit and he concluded that there are 13 apples, 12 mangoes, 10 bananas and 8 oranges. तो वो काउंट करता है नंबर्स को, तो उसके पास अब फ्रूट कितने होते हैं तो कंक्लूड निकल के आता है उसके पास अब 13 एप्पल्स होते हैं, 12 मैंगोज होते हैं, 10 बनानास होते हैं और 8 ऑरेंजेस होते हैं. हियर वी ऑब्जर्व दैट एप्पल्स आर एडेड विद एप्पल्स ओनली एंड नॉट विद मैंगोज. हमने ऑब्जर्व किया एप्पल्स को हमने एप्पल्स में ऐड किया है, मैंगोज में ऐड नहीं किया है. बनानास और ऑरेंजेस एंड सो ऑन, इस तरीके से बनानास भी और ऑरेंजेस भी हमने उन्हीं में ऐड किए, किसी और में ऐड नहीं किए हैं. दस वी कंक्लूड दैट ओनली लाइक थिंग्स कैन बी एडेड टुगेदर. इसका मतलब लाइक थिंग्स ही एक साथ ऐड हो सकती हैं. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऑफ algebraic एक्सप्रेशन इज दैट वी कैन ऐड देयर लाइक टर्म्स ओनली. जो बेसिक प्रिंसिपल है एडिशन का algebraic एक्सप्रेशन में वो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं. अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड. अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं. वी कैन ऐड टर्म्स बाय 2 मेथड्स. हम 2 मेथड से टर्म्स को ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट इज कॉलम मेथड, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल मेथड. कॉलम मेथड. इन कॉलम मेथड वी राइट द गिवन एक्सप्रेशंस इन कॉलम एंड देन ऐड देम. कॉलम मेथड के अंदर हम अपने एक्सप्रेशंस को कॉलम में लिखते हैं, उसके बाद उनको ऐड करते हैं. एग्जांपल 10 ऐड 3x² + 5y² + 7 9x² - 6y² - 8 एंड -2x² - 4y² - 1 कॉलम वाइज. आपको इन सबको कॉलम वाइज ऐड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट वी अरेंज द गिवन एक्सप्रेशंस कॉलम वाइज एंड देन ऐड ईच लाइक टर्म्स.
सबसे पहले हम इन एक्सप्रेशन को कॉलम वाइज अरेंज करेंगे, उसके बाद हर एक लाइक टर्म को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा tan x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 2। देयरफॉर tan x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 2 is the required sum. Example 11, add 5a square plus 3b square minus 9ab, 4b square plus 3ba minus 2a square and 7ab plus 2a square minus 5b square column wise। आपको इसको भी column wise ऐड करना है। सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी अरेंज द टर्म्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस एंड देन राइट देम column wise एंड ऐड देम। सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स को, जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है इनके टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे, उसके बाद इसको column wise लिखेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे। देखिए इसको हमने रीअरेंज किया तो ये क्या बना हमारा 5a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 9ab। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2a स्क्वायर पहले, फिर 4b स्क्वायर प्लस 3ab। इसको रीअरेंज करेंगे, पहले आएगा 2a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5b स्क्वायर प्लस 7ab। अब सम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab। देयरफॉर 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab इज द रिक्वायर्ड सम। Next is horizontal method. In horizontal method, we write the given expressions horizontally. Horizontal method के अंदर हम अपने expressions को horizontally लिखते हैं. Then we rearrange the terms in a way such that all the like terms are grouped. उसके बाद हम terms को इस तरीके से rearrange करते हैं कि जितनी भी हमारी like terms होती हैं वो सारे ग्रुप में आ जाती हैं। Finally we add them. उसके बाद हम finally उनको add कर देते हैं। Example 12. Add the following horizontally. आपको इन सबको horizontally add करना है। फर्स्ट इज 3x माइनस 4 एंड 8x माइनस 14। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, 3x माइनस 4 प्लस 8x माइनस 14। देखिए बच्चों 3x प्लस 8x एक ग्रुप में, प्लस माइनस 4 और माइनस 14 एक ग्रुप में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11x और माइनस 18। सेकेंड पार्ट है 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एंड करना है आपको 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8y क्यूब एंड 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। सोल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का। हमने क्या करा, हमने इसको अरेंज करा है, इन तीनों को हमने अरेंज किया है। 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस का 6x क्यूब, प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस 2x वाई स्क्वायर को प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को, उसके बाद प्लस करेंगे माइनस वाई क्यूब को प्लस 8y क्यूब को माइनस का 4y क्यूब को। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 3y क्यूब। इट मीन्स 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। Example 13, if p is equals to x plus 2y plus 3z and q is equals to 2x minus y plus z, then find p plus 2q। यदि p की वैल्यू ये है और q इक्वल है इसके, तो आपको फाइंड करना है p plus 2q। सोल्यूशन देखते हैं। नाउ टू फाइंड p plus 2q, हमें फाइंड करना है p plus 2q को। फर्स्ट वी ऐड 2q एंड देन ऐड p एंड 2q इज। सबसे पहले हम फाइंड क्या करना है, हमें p plus 2q फाइंड करना है। सबसे पहले हम 2q फाइंड करेंगे, उसके बाद हम p और 2q को ऐड कर देंगे आसानी से। 2q फाइंड करते हैं, इट मीन्स 2q मल्टीप्लाई कर देता है q की वैल्यू में, तो हमारा आंसर आएगा 4x माइनस 2y प्लस 2z। नाउ p प्लस 2q, p की वैल्यू प्लस 2q की वैल्यू उनको ऐड करते हैं, x प्लस 4x 2y माइनस 2y 3z प्लस 2z, इसको ऐड करेंगे 5x, ये 0 हो गया और ये 5z, इट मीन्स 5x प्लस 5z। एग्जाम्पल 14, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द राइट ट्राइंगल हु साइड्स आर। आपको ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करना है जिसकी साइड दे रखी है आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 15। सोल्यूशन देखते हैं। We know that perimeter of the triangle is the sum of all its sides। जैसे कि हम जानते हैं ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है बच्चों, उसकी सभी साइड्स का सम कर दो। That's the perimeter of the given triangle। तो जो पैरामीटर क्या होगा, जो ट्रायंगल दे रखा है, देखिए इनकी तीनों साइड्स को ऐड कर दो। अब ब्लैक टर्म्स एक साथ ऐड करते हैं, तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर एक साथ, 5x माइनस 2x माइनस x एक साथ, माइनस 9 प्लस 5 प्लस 15 एक साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो 13x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 2x और इसको सॉल्व करेंगे 11। इट मीन्स 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। Hence the perimeter of the triangle is, तो ट्रायंगल का पैरामीटर क्या है बच्चों, 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। नेक्स्ट, subtraction of algebraic expressions। Operation of subtraction is similar to the operation of addition।
जो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का वो बिल्कुल सिमिलर है ऑपरेशन ऑफ एडिशन के. वी नो सब्ट्रैक्शन डिनोट्स टेकिंग एंड. So if in the earlier example given in the addition section, Pawan instead of adding took away 3 apples, oranges and 3 bananas from the fruit basket, the remaining fruits would have been 7 apples, 12 mangoes, oranges and 4 bananas. देखिए हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन को डिनोट करते हैं, मतलब उसमें से लेना डिनोट करते हैं, कुछ भी चीज है उसमें से ले लो तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, कम कर दिया है. देखिए जो अर्लियर एग्जांपल था जिसमें हमने एडिशन वाले सेक्शन में एग्जांपल लिया था पवन वाला, उसमें से पवन ने ऐड किया था 3 एप्पल्स और 3 बनानास उसने ऐड किए थे. अब हम उतने ही चीजें ले लेते हैं, मतलब 3 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस, 3 बनानास उसमें से ले लेते हैं फ्रूट बास्केट में से. तो उसमें फ्रूट्स कितने बचे हैं? 7 एप्पल्स बचे हैं, 12 मैंगोज ऑरेंजेस बचे हैं और 4 बनानास बचे हैं. हियर आल्सो वी कैन सी दैट ओनली लाइक थिंग्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पर भी हमने देखा सिर्फ ब्लैक थिंग्स ही सब्ट्रैक्ट हुई हैं. To subtract an algebraic expression from another, we add the additive inverse of the expression to be subtracted. जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी algebraic expressions को किसी दूसरे में से, तो हम उसका additive inverse को ऐड कर देते हैं उस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए. This is done by changing signs. ये होता है साइन को चेंज करके, from plus to minus और from minus to plus. प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो. Of the expression to subtracted and then added to other expressions. सब्ट्रैक्शन में से उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, उसको दूसरे एक्सप्रेशन से ऐड कर देना है, मतलब अपोजिट साइन से ऐड कर देना है. एग्जांपल 15, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 5xy फ्रॉम 9x स्क्वायर माइनस 7xy. सोल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट द हॉरिजॉन्टल मेथड. हमने क्या करा, देखिए इसको हमने क्या करा, 9x स्क्वायर माइनस 7xy को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया 2x स्क्वायर माइनस 5xy से. तो देखिए 9x स्क्वायर माइनस 7xy हमने क्या करा, माइनस था ना, हमने प्लस कर दिया और अंदर के साइन चेंज कर दिया है. ये प्लस का है तो माइनस कर दिया, माइनस का तो ये प्लस कर दिया. अब 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 5xy. तो हमारा आंसर आया 7x स्क्वायर माइनस 2xy. ये आपको कॉलम मेथड दे रखा है, पहले कॉलम में अरेंज करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये माइनस तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस. हमारा आंसर आएगा 7x स्क्वायर माइनस 2xy. सेकंड पार्ट का आपको सॉल्यूशन दे रखा है हॉरिजॉन्टल मेथड में. ये सेकंड पार्ट है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से. देखिए जो माइनस साइन है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, अंदर जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे. ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस. अब देखिए 8ab एक साथ, माइनस 7ab एक साथ, माइनस का 4a स्क्वायर एक साथ, माइनस का 3a स्क्वायर एक साथ, b स्क्वायर एक साथ, माइनस 9b स्क्वायर एक साथ, 17 एक साथ और 6 एक साथ. इन सबको ऐड करते हैं. देखिए हमारा बचेगा 1ab माइनस 7a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 23. और ये है बच्चों कॉलम मेथड, मैंने पहले कॉलम में अरेंज किया है. ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज कर दिए. हमारा आंसर आया 1ab माइनस 7a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 23. एग्जाम्पल 16, इफ p is equals to x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर एंड q is equals to x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर, देन फाइंड p माइनस 2q. यदि p की वैल्यू ये है और q ये है तो आपको फाइंड करना है p माइनस 2q. सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2q को, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट में से, मतलब p को प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2q निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं. तो हमने क्या करा, 2q मल्टीप्लाई कर दी q वाले उसमें, इट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर. हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया. अब हमें क्या करना है, p माइनस 2q करना है. तो हम p में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये p की वैल्यू माइनस 2q की वैल्यू. तो देखिए x स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में से हमने क्या करा, प्लस करेंगे. यहाँ माइनस तो प्लस करेंगे, अंदर के साइन चेंज कर देंगे. ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस. उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस करेंगे, माइनस का xy माइनस 2xy प्लस करेंगे y स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर. आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर. एग्जाम्पल 17, what should be subtracted from minus 8x square plus 6y square plus 5 to get 2x square minus 3y square. हम इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें जो हमें 2x square minus 3y square मिल जाए. सॉल्यूशन देखते हैं. लेट कर लेते हैं k कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें से हम सब्ट्रैक्टेड करेंगे. तो माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे k को. तो हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. देखिए अब ये के यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस होगा, ट्रांसपोज कर देंगे और ये चीज प्लस की उधर आकर माइनस हो जाएगी. और k इज इक्वल टू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. हम माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5 इसकी जगह प्लस करेंगे, अंदर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस.
अब देखिए माइनस 8x² माइनस करेंगे 2x² को, 6y² प्लस करेंगे 3y² और प्लस 5 ऐसे ही। तो सॉल्यूशन आएगा हमारा माइनस 10x² प्लस 9y² प्लस 5। हैंस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, k की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस 10x² प्लस 9y² प्लस 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, subtract 5x² plus 3y² minus 4xy from the sum of 7y² minus 8x² plus 6xy and 15x² minus 3xy minus y² कॉलम वाइज। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को सम फाइंड करना है, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको इस वाले एक्सप्रेशन को। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, सम को फाइंड करेंगे। सम को फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7x² minus 2y² plus 3xy। अब हम इस सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाली एक्सप्रेशन को। देखिए देन वी फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस फाइंड करेंगे, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो हमारा देखिए पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2x² minus 5y² plus 7xy। दस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 2x² minus 5y² plus 7xy। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19, अ वायर इज 7x minus 5 मीटर लॉन्ग। एक वायर है वो इतने मीटर लॉन्ग है। अ लेंथ ऑफ 3x minus 8 मीटर इज कट फॉर यूज। इतनी लेंथ जो है कट कर लिया उसको यूज करने के लिए। हाउ मच वायर इज स्टिल लेफ्ट, तो वायर कितना बचा है। लेट करते हैं, लेट द वायर लेफ्ट बी k मीटर। लेट कर लेते हैं कि k मीटर वायर बचा है। नाउ टोटल लेंथ कितनी है वायर की, 7x minus 5 मीटर, ये हमें गिवन है। अब लेंथ हमने वायर की कितनी कट की है यूज करने के लिए, 3x minus 8 मीटर, ये भी हमें गिवन है। तो हम k प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 7x माइनस 5 कर लेंगे। इस k को यहीं पे रहने देंगे, 7x माइनस 5 के पास से माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद देखिए 7x माइनस 5 या माइनस इसको प्लस करेंगे, अंदर के साइन चेंज करेंगे, इट मीन्स अगेन ट्रांसपोजिंग करेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब 7x माइनस 3x प्लस करेंगे माइनस 5 प्लस 8 को, तो हमारा आंसर आएगा 4x प्लस 3। Hence 4x plus 3 मीटर लॉन्ग वायर इज लेफ्ट। इसका मतलब टोटल वायर में से 4x plus 3 मीटर वायर बचा है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.